Hello, good afternoon. This is sixth lecture in order to making videos of universal human values, uh, human being, universal human being comprehensive study all about. If we see on the previous lecture, we discussed about the clarity of continuous happiness, prosperity, human target, resolution. These are some key terms we tried to explore and understand in previous lecture. Right now, once again, I am going to recapitulate about its some point, and after that, we will proceed to study about the realization of coexistence and its expression, universal human order. So let me first throw some light on the previous lecture, continuous happiness as the basic human aspirations. From the very beginning of the study of human values and professional ethics, we are already studying about, we are trying to understand about continuous happiness and prosperity, about the human existence, about the coexistence, about the harmony in various orders, like at the level of individual, at the level of family, at the level of society, and at the level of nature and existence. And we are trying to understand the thread which is common in all. How to make a harmonious society, how to make a happy society, how to maintain order at various levels. These are point of consideration, point of thinking. We are continuously trying to understand. We are here, uh, our all endeavor is concentrated on understanding how to be happy, how to be prosperous, how to lead a very well organized, opposition-less life. So in previous lectures, we came to know that after investigation, after self-exploration, we came to know that basic human aspiration is for continuity. हमारी जो आधारभूत आकांक्षाएं हैं वो निरंतरता में सुख के लिए हैं. Aspiration for feeling of prosperity is in fact part of this continuity of happiness. 2 point. When we are talking about happiness, that means we are talking about the state, we are talking about the condition in which we want to live. We are talking about the condition in which we can realize harmony, in which we can feel friction free life. So prosperity is also integrated part of this investigation. After a long study, we came to know that human being doesn't mean only body. Human being means coexistence of self and body. So if happiness needs in self, then prosperity needs for body. Just to maintain the body, for the existence of the body, for the harmony in body. Swasth, just for the swasth, health, we need prosperity so that we can utilize our body in the right way, right fashion. So happiness and prosperity are two very key points in our consideration. And when we understand what is happiness and what is prosperity, then whatever is required for be happy and prosperous, how we will fulfill, how we will ensure the happiness and prosperity. After exploration, after thinking, after analysis, we came to know that to feel happiness in relationship and to feel prosperity with physical facilities, we need to have right understanding. Right understanding where? Right understanding in self. Right understanding in self. This is basic. Right understanding about what?
right understanding in relationship, in terms of relationship, in terms of right feelings, in terms of right feelings, and right understanding about physical facilities, physical facilities, in terms of physical facilities, in terms of rest of the nature, rest of the nature. We came to know if you want to be happy, continuously happy, then you must have right feeling about the others, other people, with your relations, and right understanding with rest of the nature. These 2 points, these 2 things are, we said this is number 1, this is number 2, and this is number 3. This is priority. And I told that if you are leading your life in this particular state only, and this is at your priority, you have set your priorities to be happy. If that is limited to physical facility, that means you are living in animal consciousness. Animal consciousness. But if you are your program for having continuous happiness and prosperity, if that encompasses all these 3, that means you have made your program with right understanding, and what we call in totality, this is development, this is transformation. This is transformation. Transformation from where to where? Transformation from animal consciousness to human consciousness. पशु चेतना से मानव चेतना की तरफ, इसी को संक्रमण कहा है। अगर आप केवल भौतिक संसाधनों तक अपने प्रयास को सीमित न करके सही भाव और सही समझ को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, तो अगर आपके जीवन के सारे निर्णय, व्हाट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग to have continuous happiness and prosperity, if that includes right understanding and right feeling, in that case you are just transforming yourself from animal consciousness to human consciousness. मानव चेतना में आपने जीना शुरू कर दिया अगर आपने सही भाव और सही समझदारी के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भौतिक सुविधाओं को ही सब कुछ समझते हैं, उनको लगता है कि उनकी हर समस्या का समाधान भौतिक सुविधाओं में है, जबकि वो रोज देख रहे हैं कि तमाम अमीर लोग, संपन्न लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनके घर में भी झगड़े हो रहे हैं, उनके घर में भी आत्महत्याएं हो रही हैं, उनके घर में भी डिप्रेशन के मरीज हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट हैं, उनके यहाँ भी जीत और हार के झगड़े हैं, उनके यहाँ भी अपने और पराये के झगड़े हैं। इतना जानने के बाद भी लोग लगातार जो प्रोग्राम जीवन का सेट कर रहे हैं, जीवन अपने प्रयत्न की जो दिशा तय कर रहे हैं, वो दिशा केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित है। तो यहाँ एक समस्या थी। तो ये हमने जाना कि अगर इफ बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, एस्पायरेशन फॉर फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इन फैक्ट पार्ट ऑफ दिस कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस. दिस इज fulfilled by ensuring right understanding, right feeling and right thought. Where? In self. Right understanding in right understanding where? In self. Right understanding and right thought. ये कहाँ पे है? ये विचार की प्रक्रिया स्वयं में चल रही है, अपने आप में चल रही है। ये मस्तिष्क में आपके नहीं चल रही है, आपके सेल्फ में चल रही है। मस्तिष्क का उपयोग करते हैं आप किसी चीज के विश्लेषण के लिए, लेकिन ये प्रक्रिया चलती तो सेल्फ में ही है, आपके अपने आत्म में ही है। दिस राइट फीलिंग एंड राइट थॉट, इसी को कहा है, अगर आपको यह समाधान, राइट फीलिंग आपके अंदर इंश्योर हो जाए और राइट थॉट आ जाए, राइट फीलिंग और राइट थॉट आएगी तो सबसे मजेदार बात यह है, देन यू विल स्टार्ट टू रियलाइज वन वेरी मेजर थिंग, यू विल स्टार्ट टू रियलाइजिंग योर एग्जिस्टेंस एज अ को एग्जिस्टेंस। अगर आपके अंदर समझदारी आ गई तो आप अपने स्वयं को दूसरे के अस्तित्व के साथ ही देख पाएंगे, क्योंकि दूसरे के अस्तित्व के बिना आपका अस्तित्व संभव नहीं है। अगर पेड़ पौधे नहीं होता तो आपके पास शरीर नहीं होता, आप क्या खा के शरीर को मेंटेन करते? आपके बने रहने के लिए इन पेड़ पौधों का बने रहना जरूरी है। तो आपके अंदर ये रियलाइजेशन होने लगता है कि आपका अस्तित्व सह अस्तित्व के साथ है, और ये तभी होता है जब आपके अंदर राइट थॉट का डेवलपमेंट होता है, जब आपके अंदर राइट फीलिंग्स आती हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो राइट फीलिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग
यानी ह्यूमन बीइंग को उसकी चेतना के साथ उसके शरीर को देख पाने की क्षमता का आपके विकास हो जाए, और इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं उनके अस्तित्व का समाधान, अस्तित्व का बोध आपको अगर हो जाए, ये दो चीजें हो जाएं, इसका मतलब कि आपके अंदर राइट फीलिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से रिजोल्यूशन यानी समाधान आपका हो गया। आपकी सभी समस्या का क्या हो गया? रिजोल्यूशन। तो ये हमने पिछले लेक्चर में इस पे चर्चा भी किया था कि द राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, समाधान। इसी को समाधान कहा गया है। आपकी समझदारी को ही समस्या का समाधान कहा गया है। अब ये रिजोल्यूशन किसके बारे में? रिजोल्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लिविंग कॉल्स फॉर क्लैरिटी अबाउट दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिविंग। जो जीवन के हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में समाधान होना चाहिए। ये रिजोल्यूशन की आवश्यकता है। तो जीवन के अन्य सारे एस्पेक्ट क्या हैं कि इन द आपके लिविंग के आपके एस्पेक्ट्स हैं, आपका सेल्फ, आपकी बॉडी, आपके सेल्फ और बॉडी के बीच में संबंध, और आपके अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, और इस प्रकृति के साथ संबंध। ये चारों स्तर पे संबंध का ज्ञान हो जाना ही रिजोल्यूशन है। क्योंकि जब चारों स्तर पे आपको संबंध पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इन ऑर्डर टू लिव इन हार्मनी हाउ टू फुलफिल योर रिलेशनशिप। अपने संबंधों का निर्वाह कैसे आप करें। जब संबंध पता चल जाएगा, आपका किसी स्त्री से विवाह जब हो जाता है तो आप ये जान पाते हैं कि उस स्त्री से संबंध का निर्वाह आपको कैसे करना है। ये कब जान पाते हैं? जब आप उससे अपने संबंध की पहचान करते हैं। माँ भी एक स्त्री है, पत्नी भी एक स्त्री है, बहन भी एक स्त्री है, लेकिन सबके से संबंध के निर्वाह की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, सबके निर्वाह के नियम अलग अलग हैं। आप ये कब कर पाते हैं? जब संबंध की पहचान कर लेते हैं। तो वैसे ही स्वयं और स्वयं के शरीर के संबंध की पहचान हो जाए और अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध की पहचान हो जाए, इस पूरे प्रकृति के साथ अपने संबंध की पहचान हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा हम आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को ही समाधान कहा है कि तब समस्या का आपके समाधान हो गया। और जब समाधान हो गया तब हम मानव जीवन का लक्ष्य तय करने चलते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर हैविंग रिजोल्यूशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ, वी स्टार्ट टू डेवलप ह्यूमन टारगेट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम ह्यूमन टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ भी हमारी मानव आकांक्षाओं से मुक्ति नहीं है। मानवीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखे बिना मानवीय जीवन का कोई लक्ष्य हम तय नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन एनी टारगेट ऑफ ह्यूमन लाइफ विदाउट कीपिंग इन माइंड ह्यूमन डिजायर, एंड वी केम टू नो दैट ह्यूमन डिजायर मीन्स इज इक्वल टू कंटिन्यूअस हैप्पीनेस ह्यूमन डिजायर, HD. I have already given this in detail of previous lecture, so I am here writing its abbreviations. Human desire equal to continuous happiness. अब ये happiness आएगी कहाँ? This is property of self. ये happiness self में आती है, और ये happiness need किसकी है? This is need of self. Okay? ये this is human desire. और कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? ये सेल्फ में, सेल्फ का कंटिन्यूअस हैप्पीनेस सेल्फ की नीड है और ये सेल्फ में होती है, ठीक? तो ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब है क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग होना, सही समझ होना, और राइट फीलिंग का होना। राइट फीलिंग यानी कि सही समझ और सही भाव का होना। सही समझ और सही भाव, यही हमारे कंटिन्यूअस यानी हमारे सुख की निरंतरता को यही इंश्योर करेगा। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, यही राइट अंडरस्टैंडिंग। और ये दोनों कहाँ होने चाहिए? ये तो सेल्फ की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये एक्टिविटी होनी चाहिए। दिस इज एक्टिविटी ऑफ सेल्फ। आप थोड़ा सा यहाँ अंतर करिएगा। दिस इज एक्टिविटी ऑफ सेल्फ। ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस ये नीड है सेल्फ की। इस नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? सही समझ का विकास करते हैं और सही भाव का विकास करते हैं। सही समझ कहाँ? सेल्फ में। सही भाव कहाँ? संबंधों में। तो ये एक्टिविटी संबंधों में सही भाव और सही समझ की गतिविधि कहाँ संचालित होती है? ये क्रिया किसकी है? ये हमारे मैं की क्रिया है। मैं की क्रिया है, हमारे सेल्फ की क्रिया है, या कहिए हमारे आत्म की क्रिया है।
ये हमारे आत्म की क्रिया है जो हमारे भीतर होती है। और इसी को कहा है कि अगर आपको इतना हो गया, आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को समझ पाए, तो समझिए आपकी समस्याओं का समाधान हो गया। समस्या पूरी नहीं हुई लेकिन समाधान हो गया। आपको समझ में आ गया कि आपकी समस्या कैसे सुलझेगी। आपके जीवन का लक्ष्य, आपने जो बड़ा लक्ष्य ह्यूमन टारगेट बनाया है सुख के निरंतरता की, ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये बात स्पष्टता में आ जाती है। तो क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या बनता है? तो पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन बनता है, समाधान बनता है, कुछ चीजों के प्रति स्पष्टता आती है, क्लैरिटी ऑफ। क्या क्लैरिटी होती है? एक तो क्लैरिटी हुई हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग का। हमने बहुत लंबी बातचीत किया है कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या, संबंध में और फिजिकल फैसिलिटी को लेके राइट अंडरस्टैंडिंग। ये दूसरी बात हमने की, राय सही समझ आ जाती है। ठीक है, जब समझदार हो गए तब हम अपने विजडम का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दूसरा किसका प्रयोग करते हैं? अपने विजडम, अपने विवेक का उपयोग करते हैं। सेल्फ में राइट अंडरस्टैंडिंग आने के बाद विवेक का उपयोग किस लिए करते हैं? कि हम अपने अब लक्ष्य को डिसाइड कर पाए, पहचान कर पाए लक्ष्य की। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन गोल, अपने लक्ष्य की पहचान कर लें कि भौतिक स्तर पे क्या करना है और संबंधों के स्तर पे क्या क्या काम करना है हमको। ठीक, जब ये हो जाता है, अब ये भी हमने पहचान लिया, अपने लक्ष्य को पहचान लिया। अब लक्ष्य को पूरा करने का तरीका क्या हो? तो आज तक किसी काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका विज्ञान के पास है। विज्ञान कोई भी काम किसी भी भेदभाव के आधार पर नहीं करता, केवल तर्क के आधार पर करता है, प्रकृति के नियमों के आधार पर करता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करता है, बड़ा व्यवस्थित ढंग से करता है, बहुत संग सुसंगठित वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करता है। उसको विज्ञान को विज्ञान जब किसी के शरीर का वैज्ञानिक परीक्षण करने जाता है तो ये नहीं देखता किस जाति का शरीर है, किस धर्म का शरीर है। वो शरीर को सिर्फ मानव शरीर मानता है और उसको एग्जामिन करता है। तो ठीक उसी तरीके से हम तरीका कहां से लेके आएंगे? तो हम तरीका तीसरे स्तर पे अपने लक्ष्य को पहचान करने के बाद उसका मेथड हम तय करेंगे साइंस के आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे, विज्ञान के आधार पे। अब विज्ञान के आधार पे तय करेंगे हाउ टू फुलफिल आवर गोल, हम जीवन के लक्ष्य को कैसे पाएं, उसका मेथड क्या हो, उसकी पद्धति क्या हो, पद्धति शास्त्रीय मुद्दे पे चर्चा करते हैं। जब ये भी तय हो गया तब हम चौथे स्तर पे व्यवहार करना शुरू करते हैं, बिहेवियर, यानी कि हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। अपने शरीर को हमारा सेल्फ आदेश देता है, डिटरमाइन करता है कि इस बॉडी से कैसे काम लेना है। तो ये हो जाता है हमारा व्यवहार। अब हम कार्य करने चले तो व्यवहार से क्या होता है? वर्क। व्यवहार से हमारी इंटरेक्शन से क्या, जब किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं पर्पसफुली तो उससे क्या होता है? कार्य। अब जब आप कार्य करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप भागीदारी करते हैं। कार्य हवा में तो करेंगे नहीं, किसी के साथ ही तो करेंगे। चाहे वो इस दीवार के साथ काम करें तो दीवार प्रकृति का हिस्सा है, मटेरियल एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। दूसरे व्यक्ति के साथ काम करने जा सकते हैं, आप प्रकृति के साथ काम करने जा सकते हैं, मशीन के साथ काम करने जा सकते हैं। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट विद द लार्जर ऑर्डर। हाँ, हेलो। हाँ, अमित जी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद बात कर लिया जाए प्लीज। ठीक, ओके, थैंक यू अमित जी। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट विद लार्जर ऑर्डर। When I am taking larger order, that means I am talking about the other person, I am talking about your family, I am talking about your society, I am talking about entire universe, entire human society, I am talking about undivided human society. So our work happen with, or we conduct our work with the except me with other orders, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके साथ हम भागीदारी करते हैं। So the सिक्स्थ पॉइंट, जो छठवां बिंदु है, वो ये है कि पार्टिसिपेशन विद अदर
लार्जर ऑर्डर, अन्य बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना। दैट मीन्स पार्टिसिपेशन विद, सातवां पॉइंट इसी को कह लीजिए, पार्टिसिपेशन विद अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी। अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, ये जो बड़ा अखंड समाज है जिसको आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। वी गो टू पार्टिसिपेट with our activities with this particular existence, इस बृहद मानव समाज के साथ हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने जाते हैं। और जब जाते हैं तब क्या होता है, हमारा पर्सद, हमारा सावका, हमारा पाला किससे पड़ता है? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर से पड़ता है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जो बड़ी मानवीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में तमाम संस्थाएं हैं, परिवार की संस्था है, विवाह की संस्था है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, कितने तरह की संस्था है, इन संस्थाओं में भागीदारी लोगों की हो रही है, हमारा पाला इससे पड़ता है। तो अगर इस भागीदारी, ये पार्टिसिपेशन है, ये पार्टिसिपेशन राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के साथ हो तो पूरी दुनिया में संघर्ष होगा ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, कंपटीशन होगा ही नहीं, जिलसनेस होगी ही नहीं। और ये कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी साइंटिफिक तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। आप बताइए, वैज्ञानिक तरीके से दो जहाजें हैं, आप वैज्ञानिक सड़क पे, आज एक जमाना था कि जब पहली रेलगाड़ी चली तो लोग कूद के दूर भाग जाते थे। मेरे बचपन में जब मोटरसाइकिल मेरे घर जाती थी तो दरवाजे का बैल जो है वो लगता था, तुड़ा के लगता था रस्सी भाग जाएगा। साधारण आज के 30 साल पहले मोटरसाइकिल किसी गांव में चले जाते जानवर परेशान हो जाते थे। आज वो वही जानवर क्या है, सड़क पे बैठा रहता। ठीक, वो छोड़ दीजिए, पहले एक मोटरसाइकिल इधर से जा रही है तो उधर से आने वाला डर जाता था। अभी क्या है, वैज्ञानिक तरीके से जब आप ड्राइविंग जान जाते हैं, आप इसकी स्पीड का संतुलन जान जाते हैं, आप कैसे गाड़ी को मोड़ना है जान जाते हैं, तो सनाक लोग गाड़ियां एक दूसरे के अगल बगल से कैसे गुजार देते हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती। लोग दीवारों पे गाड़ियां चलाते हैं, लोग कुएं में गाड़ियां चलाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के नियम को समझ लिया है, गति के नियम को समझ लिया है, कोई दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना तभी होती है जब आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते। आसमान में हजारों टन के लोहे उड़ रहे हैं, कभी किसी ने आज के 150 साल पहले कल्पना भी 100 साल पहले नहीं किया था कि हजारों टन का लोहा आसमान में उड़ेगा। ये देखिए, तमाम जहाजें उल्टी पलटी खाती रहती हैं, फाइटर प्लेन्स को आप देख सकते हैं। कभी आपने कल्पना किया था कि जहाजों को ऐसे भी हम पलट के नचाएंगे और जमीन पे नहीं गिरेगी? लेकिन कैसे हो पा रहा है? आपने प्रकृति के नियम को, लॉ ऑफ नेचर को समझ लिया। तो अगर ऐसे ही लॉ ऑफ नेचर को समझ लें आप, तो मनुष्य के बीच संघर्ष भी नहीं होगा। देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट among people. There will be no conflict in between nature and human society, in between animal society and human being, in between botanical existence and human being. कोई संघर्ष नहीं होगा। और ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ऐसा संभव है, ऐसे जिया जा सकता है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। आप एक्सप्लोर करते रहिए एंड फाइनली यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट वी कैन लिव अ वेरी हैप्पी, कंटिन्यूअस, हैप्पीली लाइफ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, without any skirmishes, without any tension, without any stress. The 9th point is, और इसी क्रम में ह्यूमन ट्रेडिशन, जो ह्यूमन ये गोल है, इस गोल को उन मानवीय परंपराओं के माध्यम से समझने का, इसी के आधार पे हम ह्यूमन ट्रेडिशंस को सेट करेंगे। इसी आधार पे हम मानवीय परंपराओं को सेट करेंगे जिनका उपयोग करके लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसा हमने इसके पहले वाले लेक्चर में चर्चा किया था। जो बात करने जा रहे हैं, ये अगर पूर्व पीठिका में आप नहीं समझते तो उसको समझना मुश्किल होता, इसलिए थोड़ी सी रोशनी डालने की हमने कोशिश की। फोर्टी 45 मिनट का रहेगा, 45 मिनट का करेंगे। अंत में इसके बाद ये कहना है आपसे कि प्लेसमेंट ऑफ दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिविंग, अगर इसको अब जो हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट हमने जीवन के देखे हैं, इसको इफ वी रिकॉल टोटल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग विद रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस ह्यूमन कंडक्ट फ्रॉम ESV1, ESV1 से हम रियलाइजेशन के स्तर पे मनुष्य के अस्तित्व को समझ पाए, अनुभव के स्तर पे जाके। ये अनुभव, एक चीज़ और,
जब भी मैं अभी आगे अनुभव की बात करूंगा, रियलाइजेशन की बात करूंगा, दिस एक्सपीरियंस डजंट मीन एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर पीपल। हमारा ये अनुभव वो नहीं है जो आपको बाहर की दुनिया से प्राप्त होता है। हमारे अनुभव वो है जो अंदर के चिंतन से, अपने भीतर, अपने सेल्फ में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पे जो आपने अपने आप और इस दुनिया को समझा है, दुनिया के अस्तित्व को समझा है, दूसरों के अस्तित्व को समझा है। मैं उस अस्तित्व को की बात कर रहा हूँ जब मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए रियलाइजेशन को आप यहाँ उस डिफरेंट अर्थों में आपको समझना होगा। तो UHV1 से आपको रियलाइजेशन के स्तर पे आप पहुंच जाते हैं। रियलाइजेशन के स्तर पे पहुंच जाते हैं मतलब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य केवल एक, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रियलाइजेशन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग दैट you know that human being is not only body, human being is coexistence of self plus body. Material means not only material means units which are submerged in the entire space. That means units who have two different things. One is two different type of things. One is conscious unit and second one is material unit. ये दो बातें आपके समझ में आ गई हैं, ऐसा रियलाइजेशन का मतलब है। आप अस्तित्व का मतलब अस्तित्व समझने लगे हैं। ये आपके अंतर मन में, आपके सेल्फ में ऐसा समाधान हो पाया है, ऐसा ज्ञान हो पाया है, ऐसा चिंतन आपका बन पाया है। These different aspects of our living in the self with the body in relation with human being and nature can be placed as shown in the slides to follow. अभी जो हम जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस, रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड बाहर की जो चीजें हैं वह इस सह अस्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। हमारा जो अस्तित्व है वह सह अस्तित्व में है, और जो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो उस सह अस्तित्व की ही अभिव्यक्ति है, जिसको हमने सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था कहा है। सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था कहा है। ठीक, आइए समझते हैं। इस प्रकृति ने एक मनुष्य के रूप में आपको कुछ शक्तियां दिया हैं। इन शक्तियों की चर्चा 5 पॉइंट के रूप में करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 शक्तियां आपके पास हैं, और इन पांचों शक्तियों से इसको कहा पावर। यहां पे हम पावर की चर्चा करेंगे, और उस पावर के उपयोग से आप कुछ गतिविधियां करते हैं। एक गतिविधि आपकी, उसको कहते हैं डायनेमिक एक्टिविटी, डायनेमिक एक्टिविटी, और दूसरे को कहते हैं स्टैटिक एक्टिविटी, स्टैटिक एक्टिविटी। अब देखिए, ये दो को छोड़ देते हैं, इसको बाद में समझेंगे, ये दोनों शक्तियों को। एक आपके पास पावर है जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। आपके पास शक्ति है डिजायर की, जिसको कहा है इच्छा। आपके मस्तिष्क में ये शक्ति है जिससे आप इच्छा कर सकते हैं, और इच्छा की शक्ति से करते क्या है आप? डायनेमिक एक्टिविटी। गतिशील क्रिया क्या होती है? गति क्रिया क्या होती है? इस शक्ति से, इस शक्ति से गति क्रिया होती है इमेजिंग की। आप देखिए, जो चीज आप नहीं देखें आप उसका चित्रण भी नहीं कर सकते। अगर हम कहें समोसा, अगर आप जिंदगी में समोसा नहीं देखे हैं कभी, तो समोसे का चित्रण नहीं हो पाएगा। आप कभी सोच के देखिए, किसी ऐसी चीज जिसको नहीं देखे हैं उसका कोई नाम ले ले, तो देखिए आपके दिमाग में कुछ बनता है। और मजेदार बात यह है कि आप दुनिया में कुछ भी, जैसे हमने कहा दो, तो बचपन से आपकी कंडीशनिंग की गई है कि दो या तो इस टाइप का होता है या तो इस टाइप का होता है, या अन्य भाषाओं में तरह तरह के दो बताए गए होंगे, तो जो बताया गया वही चित्र आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा। लेकिन नहीं बताया गया हो तो चित्र नहीं बनेगा। तो आपके पास पावर डिजायर है, इसी इच्छा की शक्ति से आप बहुत सारी चीजों के बारे में, तमाम भौतिक और अभौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, चित्रण आपके भीतर बनता है इसी डिजायर की ताकत से। और इसको कहा गया है व्यक्ति के सेल्फ की डायनेमिक क्रिया है। ये चित्रण क्या है? हमारे सेल्फ की एक डायनेमिक, एक गतिशील क्रिया है। अब आपको चित्रण हो गया,
जिस चीज का आपने चित्र बनाया, जैसे आपने तय किया कि अपने शरीर के सदुपयोग के लिए हमको एक कार खरीदना है, तो अब कार के बारे में आपको बताया गया होगा क्यों कार ही खरीदना है। कार के बारे में समाज में बताया गया होगा कि बड़ा सुरक्षित रहता है, धूप से बच जाएंगे, वर्षा से बच जाएंगे, बैठ के कहीं जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, गाना सुनते हुए जा सकते हैं, पानी पीते हुए जा सकते हैं, 4 आदमी को और बैठा के लेके जा सकते हैं, ऐसा बताया गया होगा। तो जब इसका चित्रण होगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक पावर है थॉट की, पावर ऑफ थॉट। अब इस पावर ऑफ थॉट से कौन सी डायनेमिक एक्टिविटी आपके सेल्फ में होती है, विश्लेषण की, यानी कि विचार की शक्ति। इस विचार की शक्ति से एनालिसिस, यानी कि आपके भीतर विश्लेषण की प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाती है। कार 4 सीटर चाहिए, 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, 9 सीटर चाहिए, एसयूवी चाहिए, सिंपल चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, सेडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाली चाहिए, 35 लाख वाली कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, ऑडी चाहिए, लैंड रोवर चाहिए, लैंड रेंजर चाहिए, है कि नहीं है, ऑडी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, आप इस पे विचार करना शुरू, किससे आपका काम चल जाएगा, विचार में आना शुरू, काली चाहिए, नीली चाहिए, पीली चाहिए, उसके गद्दी का कलर कैसा होगा, कहाँ गाड़ी को रखेंगे, अब आप विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर एनालिसिस शुरू हो जाता है। और इसी एनालिसिस के आधार पे अब आप इसकी स्थिति क्रिया क्या है, तुलन, कंपैरिजन करना आप शुरू कर देते हैं, तमाम चीजों में आपका शुरू हो जाता है। और जो इमेजिंग है, तो ये सब सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, आप कंटेम्पलेट करते हो इसकी, ये इमेजिंग की जो स्थित क्रिया है वो कंटेम्पलेशन। तो आप एनालिसिस करना शुरू कर दिए। अब विश्लेषण के बाद क्या होता है, आपके पास पावर एक्सपेक्टेशन की, यू हैव पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन, आशा। अब जो भी कार आपने लिया उससे आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जिस तरह का आपका एक्सपेक्टेशन है अपनी कार से, जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि उससे हमको ये चीज मिलेगी, वैसा ही कार आप सेलेक्ट करते हैं। अब आपकी एक गतिक क्रिया के रूप में सिलेक्शन होता है, चयन होता है, ठीक। तो ये स्थिति बनती है। एक स्थिति क्या बनी, डिजायर, इमेजिंग, थॉट, एनालिसिस, एक्सपेक्टेशन, सिलेक्शन। अब कुछ मजेदार बात करनी है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ डिजायर। आपने सोचा तो क्यों सोचा, आपको कार चाहिए, क्यों चाहिए, ये दिमाग में आपके आया कहां से। आपको अब ये बड़ी मजेदार बात है, आप सोचेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि आप कुछ सोचे तो क्यों सोचे, चाहे वो लाल कार, पीली कार, नीली कार, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, क्यों सोचे आप, ये डिजायर आया कहां से। अब यहाँ डिजायर के देखिए कितने स्रोत हैं और उसी में सारी गड़बड़ी है, वही आपकी समस्या की जड़ है। ये डिजायर आना, अगर सोर्स गड़बड़ है तो आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं पा सकते। अब देखिए आप सोचते क्या हैं, हमने कहा था ना कि समोसा अगर देखे ना हो तो समोसे की इमेज आपके दिमाग में नहीं बनेगी, ठीक। अब होता क्या है, सोर्स क्या है, तो हमारे डिजायर, ये अच्छा, ये सारी गतिविधियां कहाँ चल रही हैं, ये सब हमारे मैं में चल रही हैं, हमारे सेल्फ में, हमारे बॉडी में कुछ नहीं चल रहा है, ये सब का सब हमारे सेल्फ में चल रहा है। तो जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज का आधार क्या है, एक तो ये सोचना, आज इसी महत्वपूर्ण बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके सोर्सेज के आधार वगैरह पे। तो एक सोर्स तो है प्री कंडीशनिंग, ये नहीं आ रहा है ना, एक सोर्स हमारा डिजायर का है प्री कंडीशनिंग, प्री कंडीशनिंग, हमारी मान्यताएं। हमको बचपन से बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, हमको बताया गया है कि जो सस्ती कार होती है उस आदमी का स्टेटस बहुत ऊंचा नहीं होता, महंगी कार हो तो आपका स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, बड़ी कार हो तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको यही सब बताया गया है, बड़ी कार हो तो इज्जत करेंगे, लग्जरी कार से बहुत आराम रहता है, यही सब आपको बताया गया है, आपको कंडीशनड किया गया है, बचपन से लगातार कंडीशनिंग होती रहती है, तो आप महंगी महंगी चीजों को ढूंढने लगते हैं, महंगी चीजों में सुख ढूंढने लगते हैं,
तो अगर आपका डिजायर, जैसे आपको कार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक दिन देखा आपने कि आपके पड़ोसी के घर कार आ गई, अब उसी दिन से आपको लगने लगा कि आपको कार आपके पास होनी चाहिए। हम बताएं, हमारे पिताजी ने हमारे गांव में सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदी। उनसे पहले भी एक लोग ने खरीदा था अपनी बेटी को दहेज देने के लिए, साल भर पहले। तो पिताजी ने खरीदी, तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में जब घर जाना होता था तो पिताजी का एक ही काम था कि जो उनसे बड़े लोग थे कहते थे जाओ उस लड़की को उसके ससुराल से लेते आओ, उसको लेते आओ, उसको लेते आओ। तो बेचारे वो ही वॉज यंग एंड वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, तो वो जाते थे, सबकी लड़कियों को लेके आते थे मोटरसाइकिल से। भाई मोटरसाइकिल थी और वो भी राजदूत टाइप की मोटरसाइकिल थी, तो कहीं भी गड्ढा गुड्ढी में कहीं आ जा सकती थी। तो जब बूढ़ी बूढ़ी बुआ लोग उस पर बैठती थी तो पिताजी को इतना तेज पकड़े रहती थी कि पिताजी को लगता था कि वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनको मोटरसाइकिल जैसी चीज पे और तेज चलने वाली चीज पे बैठने की आदत नहीं थी। किसी जमाने में बैलगाड़ी पे बैठा के उनकी विदाई हुई थी या डोली में विदाई हुई थी, और बैलगाड़ी से उनको ले आया जाता था, बैलगाड़ी से ले जाया जाता था, नहीं तो पैदल लोग आते थे, ये कंडीशन होते थे। तो हुआ क्या कि कभी मान लीजिए तबीयत खराब है, कभी जाने का मन नहीं है, या कभी आपके जेब में पैसा ही नहीं है कि पेट्रोल भरवाएं गाड़ी में, तो दूसरे से पेट्रोल का पैसा तो आप मांगेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कभी उन्होंने अपना एवर्शन किसी बात पे शो कर दिया, या किसी ने गाड़ी सीखने के लिए मांग लिया और उनको लगा कि इस गांव में खराब हो जाएगा तो मिस्त्री कहाँ मिलेगा, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर तो मिस्त्री मिलेगा, कह देगा कहाँ बनवाएंगे हम, तो मना कर दिया। तो अब सामने वाले का क्या होता है, उसको होता है ईगो। अब उसका ईगो हर्ट हो गया। अब जब ईगो जैसे ही हर्ट हुआ, उसके अंदर डिजायर पैदा हुआ। पहले डिजायर पैदा हुआ कि मोटरसाइकिल सीख लें। अब वो डिजायर पूरा नहीं हुआ, सामने वाले से मांगा तो उसको सामने वाले ने मना किया, तो उसके अंदर ईगो पैदा हो गया, अब हम भी मोटरसाइकिल खरीदेंगे, हम उनसे कम हैं क्या। अब यहां देखिए, मोटरसाइकिल खरीदा कैसे जाना है, आवश्यकता के लिए, हमारी आवश्यकता हो तो हम खरीद लें, लेकिन यहां किस लिए खरीद रहे हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जरूरत नहीं है आपकी, आप अपने, यानी कि इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने नीड का असेसमेंट करने की क्षमता आपके पास नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि किसी को दिखाना है कि हम भी खरीद सकते हैं, मेरे पास भी है। अब आपके डिजायर का सोर्स क्या हो गया, तमाम। अच्छा एक बात और, जिसके पास मोटरसाइकिल है, तो अगर मोटरसाइकिल है तो एक और चीज होती है कि लोग आपके पूछने लगते हैं, अगल बगल घूमने लगते हैं, संबंध भी बनाने लगते हैं कि उनको भी जरूरत पड़ेगी तो उनका काम आप फट से कर देंगे। तमाम नए नए संबंधी आपके उजागर हो जाते हैं, बड़े कई सारे लोग, तमाम सुविधाएं हो तो देखिए आपको नमस्ते करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मैं आज के 21 साल पहले एक चुनाव लड़ा था, तो मेरे दोस्त की एक कार थी, तो हम लोग उसी कार से प्रचार करने जाते थे, तो मुझे बहुत लोग नमस्ते करते थे। लेकिन जब दोस्त अपनी कार ले लिया, 1 महीने तक मेरे पास रही, ले लिया, उसके बाद जो लोग ऐसे नमस्ते करते थे, फिर भैया नमस्ते ऐसे करने लगे, फिर ऐसे भैया नमस्ते, फिर ऐसे, फिर और भैया सब ठीक बा, फिर इसके बाद ये कहना भी बंद कर दिए। तो जो जब कार मेरे पास नहीं थी तो जितने लोग नमस्ते करते थे उतने ही लोग बाद में भी नमस्ते करते रहे। 3-4 महीना में वो कार की वजह से नमस्ते करने वाले सभी लोग गायब हो गए। बात समझ रहे हैं? तो ये जो डिजायर वाला पोर्शन है, ये बड़ा मजेदार पोर्शन है। एक तो आपकी कंडीशनिंग की जाती है कि अगर आपके पास महंगी वस्तुएं हैं, सुविधा है, संसाधन है, तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसा कंडीशनड हो गए आप। तो अब आप कंडीशनड हो गए, तो अपनी आवश्यकता की, अपनी नीड का असेसमेंट किए बिना आप उस चीज के पीछे पड़ गए, इच्छा करने लगे, और ये सब अपने दिमाग में, ये सारी चीजें मिलकर इमेजिनेशन बनाती हैं। ये जितनी बात लिखी है इसी को कहा जाता है कल्पना। अब आप कल्पना के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए, इसी को कल्पनाशीलता कहा जाता है। अब दिमाग में कल्पनाशीलता में आप अपनी चीजें चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपकी कल्पनाशीलता में अब चल रही हैं, गाड़ी को लेके, कार को लेके, इज्जत को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, अपने ईगो को लेके चल रहे हैं आप, परेशान हैं आप, रात रात भर जाग रहे हैं, टेंशन आपका बना हुआ है, निरंतरता में विचार बना हुआ है कि हमको ये चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए ये नहीं पता, या चाहिए तो दूसरे को दिखाने के लिए चाहिए, या इससे इज्जत मिलेगा इसलिए चाहिए। जबकि वस्तु का उपयोग क्या होता है, वो एक सुविधा है आपके लिए, जो आपकी किसी आवश्यकता को पूरा करती है। आपको आवश्यकता है तो मोटरसाइकिल ले लीजिए, क्योंकि पता, अगर आपने ईगो में मोटरसाइकिल ले लिया, आप लेके आए मोटरसाइकिल और सामने वाले ने कार खरीद लिया, तब क्या करेंगे आप? उसने खरीद लिया कार, अब फिर आपका ईगो हर्ट हो गया, अब आप उसको क्या दिखाएंगे? आप तो दिखाने वाले थे कि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास भी है। अब जब तक आप मोटरसाइकिल खरीदते तब तक सामने वाले ने कार खरीद लिया, फिर आपने थोड़ी हिम्मत करी, आप भी कार लेके आए, तब तक उसने उसको बेच के और महंगी कार खरीद लिया।
अब आप ये देखिए कि आपके जीवन का सारा प्रयास दूसरे की गतिविधियों का गुलाम होकर बैठा है। वो जैसा चाह रहा है वैसा ही आप कर रहे हैं। आप स्वाधीन कैसे रहेंगे? आप स्वाधीन होकर निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, हमको आजादी पसंद है, फ्रीडम पसंद है। कहाँ आप फ्री हैं? आप तो दूसरे को देख के जी रहे हैं। कहाँ आप फ्री हैं? आपके जीवन को तो कोई और कंट्रोल कर रहा है, दूसरे आदमी की गतिविधियां कंट्रोल कर रही हैं। तो ऐसे तो नहीं चलता जीवन। फिर ऐसे तो आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। तो एक तो हमारी प्री कंडीशनिंग हमारी इच्छाओं का स्रोत है। तो हम, और दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा हमारी इच्छाओं का स्रोत सेंसेशन है। तीसरा, दूसरा है सेंसेशन, हमारी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, इनसे मिलने वाली उत्तेजना। कई बार हम डिजायर एक्साइटमेंट को लेके कुछ छूना चाहते हैं, छूने में मजा आता है, तो कल्पना में छूने के बारे में सोचे जा रहे हैं कि वाह कितना बढ़िया फूल कहीं खिला हुआ है, और अब आपको छूने की इच्छा हो गई और फिर आपने तोड़ भी लिया उसको, और पता चला कि जो इच्छा इतनी बलवती थी वो जब फूल आपके हाथ में आ गया, शाम तक मुरझा गया, तो आपने उठा के फेंक दिया। जिस चीज के लिए इतना आप पागल थे उसको आपने तोड़ा और आपने फेंक भी दिया, उसका जीवन नष्ट कर दिया। छूने से मजा जो मिलता है, अब ये मजा परमानेंट तो नहीं है। जब आपने छुआ तो मजा आया, थोड़ी देर बाद वो मजा नहीं मिल रहा है। बढ़िया खाना, टेस्ट का मजा, ये भी इंद्रिय का मजा है। बहुत डिलीशियस भोजन के पीछे, एक दिन हमारी कॉलेज में एक फैकल्टी हैं, तो उनकी शादी बहुत अमीर लड़के से हो रही है। तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो है वो दिल्ली से आगरा खाना खाने आ गए थे एक दिन अपने दोस्तों के साथ। अब आप सोच सकते हैं ये क्या है? दिल्ली से आगरा खाना खाने का मतलब कि आपके सेंसेस आपको कितना स्ट्रांग है, आपके सेंसेस पे आपके सेंसेस आपके विचारों को कितना गहराई से पकड़े हुए हैं कि आप अपने जिह्वा के अधीन एक टेस्ट लेने के लिए आप दिल्ली से आगरा आ गए खाना खाने। 3-4 घंटा 5 घंटा लगा होगा आने में, इतना ही जाने में भी लगा होगा। दिल्ली आगरे के बीच की दूरी जो भी 300-350-400 किलोमीटर हो, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ होगा। अब सोचिए वो अपने सेंसेस के कितने अधीन है। बढ़िया सिनेमा देखने के लिए कितने पे लोग बच्चे चोरी कर लेते हैं। क्यों? सिनेमा में क्या मिलेगा? सुंदर तस्वीरें और सुंदर आवाजें। तो सुंदर तस्वीर और सुंदर आवाजों से आप सेंसिटाइज हैं, स्टोरीज से आप सेंसिटाइज हैं, ये उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है। आप किसी के रूप से सेंसिटाइज हैं, उसके लिए पागल रहते हैं, दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जब उसी से शादी हो जाती है उसी से परेशान भी हो जाते हैं, उसी से दूर भी भागने लगते हैं आप। क्यों? क्योंकि आप उससे, उसके रूप में आप निरंतर सुख ढूंढ रहे थे, और जब वो आपको मिल गया तो फिर वो भी आपको सुख नहीं देता। महात्मा बुद्ध इसी बात से तो परेशान थे। उनके पास तो राज वैभव सब कुछ था, सुंदर स्त्री से विवाह भी हुआ था, एक सुंदर पुत्र भी था, फिर भी सब छोड़ छाड़ के भाग गए। कह लिए भाग गए सुख की तलाश में, कि सुख क्या है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस क्या है। बुद्ध की पूरी कहानी, महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी सुख के तलाश की कहानी है। तो उनको हुआ क्या? उनको यही राइट अंडरस्टैंडिंग हुआ, उनको समाधान हुआ, राइट अंडरस्टैंडिंग हुआ, उनको बोध की प्राप्ति हुई। वृक्ष के नीचे बोध हुआ, रियलाइजेशन हुआ। क्या रियलाइजेशन हुआ? यही रियलाइजेशन हुआ, यही समाधान हुआ दुनिया में संबंधों के बारे में। फिर न कोई अपना हुआ, न कोई पराया हुआ, न कोई छोटा हुआ, न कोई बड़ा हुआ, सब में संबंध देखने की क्षमता विकसित हो गई। एक ही भाव में जीने लगे, उत्तेजनाएं खत्म हो गई, एक्साइटमेंट खत्म हो गया। तो ये जो एक्साइटमेंट आपका है ना, या तो आपके डिजायर का सोर्स ये है। तो अगर प्री कंडीशनिंग से आप डिजायर का सोर्स बनता है तो भी निरंतर सुख नहीं मिलेगा। अगर उत्तेजना से आपके डिजायर का सोर्स बना, क्योंकि ये डिजायर ही अंततः आपके टारगेट में के रूप में आएगा, ये डिजायर ही आपके जीवन का लक्ष्य बनाएगा। हम लगातार एस्पायरेशंस की बात कर रहे हैं, इच्छाओं की बात कर रहे हैं, तो ये डिजायर ही, ये एक देख लीजिए कि इससे आ रहा है तो भी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस आप चेक करके देख लीजिए मिलेगा कि नहीं। एक बार बढ़िया खाना खाने के बाद कितना बढ़िया खाना खा सकते हैं। चलिए, आपको अच्छा खाने का डिजायर हुआ कि बढ़िया खाना खाएंगे, आपने खाने में सोचा रसगुल्ला भी मिल जाए, पहला रसगुल्ला खाएंगे, टेस्ट मिलेगा, वाह मजा आ गया, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, बड़ा शानदार रसगुल्ला है। दूसरा रसगुल्ला हमने दिया, आपको और मजा आया, तीसरा रसगुल्ला दिया, खूब मजा आया। तो चौथा दिया। इस तरीके से इन द सेम फैशन आप देखेंगे कि
थोड़ी देर बाद आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन टेस्ट मिल रहा है, थोड़ा बहुत टेस्ट मिल रहा है, तो आप पांचवा छठवां खा लेते हैं। इसके बाद आपको टेस्ट भी नहीं मिल रहा है, अब वो आपके लिए एक्सेस हो गया, आप मना करना शुरू कर देते हैं कि अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। अब सोचिए कितना क्षणिक है ये सुख टेस्ट का, और इसमें आप निरंतर खुशी कैसे पा सकते हैं। इसी भोजन के लिए कितने लोग घर में थाली फेंक देते हैं, खाना बनाने वाले झगड़ा कर लेते हैं, उसकी मनोदशा मनोस्थिति नहीं समझते हैं। आप 6 बजे उठ के बढ़िया खाना चाहते हैं और 5 बजे 4:30 बजे उठ के कोई आपके लिए खाना बना रहा है, उसके श्रम का कोई मूल्य नहीं, अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं बना तो आप उसको उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, आप थाली फेंक देते हैं, आप उसमें संबंध नहीं देख पाते अपना एक्साइटमेंट के लिए। वह एक्साइटमेंट जो इतना क्षणिक है, जो घंटे भर भी आपको सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि सारी संवेदना, सारा एक्साइटमेंट तो यही 4 इंच या 6 इंच जो आपके जीवा है इसी में है। इसके बाद तो फिर वो सैकड़ों फीट की यात्रा करता है आपके पेट के अंदर। बहुत बड़ी आपकी नली है पेट वाली, छोटी आंत बड़ी आंत की कितना 36 फीट या समथिंग क्या है उसकी लंबाई चौड़ाई, आप लोग देख लीजिए, मिल जाएगा, बायोलॉजी वाले बताएंगे, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। कितनी लंबी यात्रा, कितना कष्टकारी हो जाता है, उत्तेजना के आधार पर किया गया भोजन। मिर्चा विर्चा खा लेते हैं एक्साइटमेंट के लिए आप, और बाद में पता चलता है कितनी तकलीफ हाथों को होती है, पेट को होती है, जलन होती है, एसिड बन जाता है, खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको एडिशनल ऐड लेना पड़ता है, और ये सारा मजा काहे लिए थे, टेस्टी खाना बन जाए। जो भोजन किया आपने वो शरीर को स्वीकृत नहीं था, नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं था। एक तीसरा मजेदार सोर्स है जिससे कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिल सकती है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर किए और सेल्फ एक्सप्लोरेशन से जाने, वो था हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी कि प्राकृतिक स्वीकृति या सहज स्वीकृति। सहज, ये देखिए, ये जो हमारी सहज स्वीकृति है ना, अगर ऐसे हमारा जीना हो जाए तो हम देखेंगे कि हमारा जो डिजायर है वो करेक्ट है। वी आर डिजायरिंग करेक्टली, डिजायरिंग करेक्टली, देन वी कैन आइडेंटिफाई आवर गोल्स वेरी करेक्टली। अब ये सहज स्वीकृति के मुद्दे पे, इन तमाम मुद्दों पे बाद में बात करते हैं। आई थिंक माई लेक्चर इज I am crossing the time limit. So thank you very much. In next lecture, I would like to complete the same thing.